I hope you all are fine and safe at your place. Myself Meenakshi Sharma welcomes you on the online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my last video, that is video session 50, what I had discussed chapter number 10 circles, some important question of exercise 10.4, right? You can say 1, 2, 3. And these questions were very, very important, so you have to do. Now, in this video session 51, in this session 51, I would like to discuss the new exercise, some important question of the new exercise, that is exercise 10.5. So, please everyone, open your NCERT book, exercise 10.5, question number 1. Question number 1 is A, B and C are the 3 points on a circle with the center O, such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. You can see the figure, beta. This is the circle with the center O and ABC. There are 3 points and these 3 points are lying on the circle such that with the condition that BOC, this angle is 30 degree and angle AOB is 60 degree, right? If D is a point on the circle other than the R, कहते हैं D कोई एक point है वो circle के ऊपर है other than the R, ठीक है? तो you have to find angle ADC. That means आपको इस question के अंदर ADC, this angle you have to calculate. Now, beta, this question is based on the theorem and the theorem is very, very important. Now, come to page number 180. In page number 180, theorem 10.8. 10.8 क्या कहती है? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. मतलब मान लो suppose आपके पास एक circle है, ठीक है? This is AOB, O is the center of the circle. और ये एक और पॉइंट है सर्कल के ऊपर, कॉल दिस पॉइंट एज C. तो थ्योरम क्या कहती है कि दिस एंगल इज एंगल AOB, this angle ACB is twice of angle AOB. This is the theorem. कि जो ये वाला एंगल है ना, this angle ACB, ये क्या होगा? इसका डबल होगा. AOB का ये वाला जो एंगल है वो डबल होगा. This is the theorem. So basically you can say that this question is based on this theorem 10.8, which I had already discussed. जब मैंने ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था लाइव सेशन में, तो मैं आपको पहले से ही चैप्टर बता चुकी हूँ, ठीक है? तो ओके, तो अब हम करते हैं. ओके, जस्ट लुक एट, कैन यू से दैट यू हैव टू कैलकुलेट ADC. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट अबाउट AOC? एंगल AOC is the sum of, look at the board beta, angle AOC is the sum of AOB plus BOC. What is angle AOB? AOB is 60 degree and what is BOC? BOC is 30 degree, so it becomes 90 degree, means angle AOC is 90 degree, right? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट ADC. ऑल्सो ADC. ओके, आपको ADC निकालना है तो आप ये बोल सकते हो ना, एंगल AOC, ऑल्सो एंगल AOC इज डबल ऑफ एंगल ADC. से यस और नो आप बोल सकते हो ना कि दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल. और द रीजन, Theorem 10.8. But in examination, you have to write down the full statement. This is theorem 10.8. ठीक है? Now what is AOC? AOC is 90 degree. So in place of AOC, I am writing 90 degree, right? And this becomes 2 times angle ADC. So here 2 is multiplying. Now this write down this 2 in the denominator. So 90 degree divided by 2 is equal to angle ADC. So you can say that 45 degree is equal to ADC. This angle ADC is 45 degree. I hope you understood this question. Question number 1 of exercise 10.5.
Okay student, I hope you understood question number 1 of exercise 10.5 and this question is based on the theorem 10.8. Okay बेटा, one more thing, important thing, जब भी आप इस क्वेश्चन नंबर 1 का रीजन दोगे, जो मैंने आपको एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली थ्योरम बताई थी, यू हैव टू राइट डाउन द फुल स्टेटमेंट, डोंट राइट बाय यूजिंग थ्योरम 10.8. अगर आप ऐसा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.5 इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस विल बी दी होमवर्क. ये आपका होमवर्क है, आपको करना है. ठीक है, आज द रिवीजन इज गोइंग ऑन ना, तो मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, जो सेम क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से करने होंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज angle ABC 69 degree. You can see the figure beta. Angle ABC, this is 69 degree and angle ACB is 31 degree. This is given in the question. You have to find out BDC. So जब भी ज्योमेट्री पोर्शन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम है, you have to write what is given, what you have to prove. If some construction is there, then you have to write down the construction also. Got it? So what is given? Given angle ABC is 69 degree and angle ACB is 31 degree. To find angle ADC. This is question. Now दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम अदर थ्योरम. एक और थ्योरम पे ये क्वेश्चन बेस्ड है. थ्योरम बोलती है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. सो आई विल फाइंड आउट दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम. द प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस. प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है. ओनली यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. इक्वल होते हैं वो मैं बताऊंगी कैसे. ठीक है, अच्छा देखो, बेसिकली आपको ये निकालना है. ठीक है, अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाता है, इफ आई विल फाइंड आउट दिस एंगल, सो बाय यूजिंग दैट थ्योरम कैन आई से दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल और नॉट. वी कैन से ना, अगर मेरे पास ये एंगल आ जाता है तो मैं ये बोल दूंगी एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, क्योंकि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा. अब देखो, इन दिस ट्राइंगल ABC, अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन ट्राइंगल ABC by using angle sum property बेटा, by using angle sum property. देखो, in triangle ABC angle A plus B plus C is equal to 180 degree. Angle sum property of a triangle. ठीक है, now you have angle B. You have angle B which is 69 degree. C is 31 degree and this is 180 degree. Now angle A it would be 9 or 110 0. It becomes 90. So can you say that angle A is equal to 180 minus 90? नहीं, it becomes beta 100 होगा ये 100. So after deduction 100 degree from 180, what is left? What is left beta? Only 80 degrees left. So angle A is 80 degree. यहाँ से जो आपका एंगल ए था वो कितना आ गया? 80 डिग्री. सो कैन यू से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. दिस इज द थ्योरम ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल. Right? Angle in the same segment of circle are equal. Got it? ठीक है. So you can say that angle D is also 90 degree. Angle D is also 90 degree. So this implies that I am writing here. So this implies that angle ADC is 80 degree. And this is the part which you have to show. आपको क्या निकालना था? Angle ADC निकालना था ना. तो I hope you understood this question very well. This is very important question बेटा. कुछ नहीं करना था, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था. जब ये वाला एंगल आ जाता
तो बाय यूजिंग दैट थ्योरम की एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो वट एवर द एंगल ए द सेम विल बी ऑफ डी, जो भी एंगल ए होगा वही आपका डी होगा, तो यहां से आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। Okay, now come to question number 5 of exercise 10.5. Now question number 5 is A, B, C and D are 4 points on this circle. You can see the figure A, B, C, D. There are 4 points which are lying on this circle. AC and BD intersect at point E. Means AC and BD. AC and BD. These two lines are intersecting at point E such that angle BEC is 130. BEC is 130. So what is given? Given angle BEC is 130 degree. Right? Next, angle ECD is 20 degree. ECD. Angle ECD is 20 degree. Now you have to find BAC. आपको कौन सा एंगल निकालना है? दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ, ठीक है। यू हैव टू फाइंड एंगल BAC। बेटा 1 मार्क ना आपका आधा नंबर इसका ही होता है। अगर आप ये लिख देते हो ना, सपोज आपको क्वेश्चन नहीं आता और अगर आप फिगर बना देते हो, क्वेश्चन लिख देते हो कि व्हाट इज गिवन, व्हाट यू हैव टू प्रूव, तो हाफ मार्क्स इसका आपको मिलता है। दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ज्योमेट्री क्वेश्चन। जितना भी ज्योमेट्री का पार्ट है उसमें गिवन और टू प्रूफ इट इज कंपल्सरी टू राइट। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये क्वेश्चन कैसे करूंगी। सपोज आपको ये आता ही नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा अगर मेरे पास ये एंगल आ जाए, अगर मेरे पास दिस एंगल डी, आई मीन टू से BDC या EDC, ये एंगल आ जाए, तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मतलब जब ये आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो भी तो वही होगा ना। द सेम क्वेश्चन विच यू हैव डन, वट एवर यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब मैंने सोचा ये एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करूं। नाउ लुक एट द फिगर, दिस इज 130 डिग्री, कॉल दिस एंगल एज 1, इसको आप 1 बोलो। एंगल 1 प्लस 130 डिग्री क्या फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। सो यू कैन से दैट एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया। सो कैन यू फाइंड आउट एंगल 1? सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल 1 इट बिकम्स 50 डिग्री। इसका मतलब आपके पास एंगल 1 आ गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम को कैसे पता चला कि मैं यही वाला एंगल करूं। देखो बेटा, मेरे माइंड में ऐसा है कि ये एंगल मेरे पास ऑटोमेटिकली है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ECD एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, मेरे पास ये वाला एंगल ऑलरेडी है। ठीक है, अगर मैं इसकी हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं तो ये एंगल भी मेरे पास आ जाएगा। नाउ आई हैव 2 एंगल्स, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कैन यू फाइंड आउट द थर्ड वन। Now after getting the third angle, this angle it would be same as angle A. Why? Because angle in the same segment of circle are equal, right? तो अब मैंने क्या किया, in triangle EDC, in triangle EDC, angle 1 plus 20 degree plus D is equal to 180 degree. ठीक है, ये कर सकते हैं। तो एंगल 1 इज व्हाट? एंगल 1 इज 50 डिग्री। अभी आपने कैलकुलेट किया, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी वुड बी 180 माइनस सम ऑफ दीज टू, 50 प्लस 20 इट बिकम्स 70। तो 180 में से 70 जाएंगे तो इट बिकम्स 110 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये एंगल था ये आपका कितना आ गया? 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। Also you know that angle in the same segment of circle are equal. So can you say that BAC, angle BAC is same as angle CDB. Angle CDB. Quote the reason. Angle in the same segment of circle are equal. Angle
दिस इंप्लाइज दैट एंगल आपको कौन सा निकालना था, BAC, ये लिखना 110. सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इज बेस्ड ऑन थ्योरम 10.8. वो थ्योरम 10.8 पे बेस्ड है. एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, these two questions are based on angle in the same segment of the circle are equal. So I hope you understood this question very well. और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको. ठीक है. Okay, now come to question number 6 and mark question number 6 is very very important. Okay, beta read the question 6 from your NCERT book. Question number 6 is ABCD is a cyclic quadrilateral. अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर होता है. ठीक है, तो एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है साइक्लिक जो एक सर्कल के अंदर है. तो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD. This is the cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कौन से होंगे? AC and BD. And these diagonals intersect, कहाँ intersect कर रहे हैं? At some point E. Important question है बेटा, बहुत ज़्यादा. ठीक है, आप देखो, if angle DBC, ये एक 70 डिग्री दिया हुआ है. This angle is 70 degree and BAC is 30. BAC ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, आपको क्या निकालना है? BCD निकालना है. BCD मतलब ये पूरा एंगल आपको निकालना है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी. पहले इतना काम करते हैं. ठीक है, आपको पता है बच्चे कि अगर ये 70 है, सपोज ये 30 डिग्री है, दिस angle BAC, can you say that angle BAC is same as angle BDC? angle BDC क्यों? अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा. मैं ये कह रही हूँ, ऐसा क्यों है? Because angle in the same segment of circle are equal. क्या लिखोगे? Angle in the same segment, right? Angle in the same segment. ठीक है, अब देखो, आपको ये वाला एंगल निकालना है. सो कैन यू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल? इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD, कैन यू से दैट एंगल D plus B plus C is equal to 180 degree? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है बेटा. नाउ व्हाट इज D? D is 30 degree. What is B? B is 70 degree plus angle C is equal to 180 degree. So angle C would be 180 degree minus 100 degree. तो देखो 70 plus 30 it becomes 100. 100 माइनस हो गया, कितने का आ गया? 80 डिग्री का. इसका मतलब ये क्या हो गया? 80 डिग्री हो गया. पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री हो गया. ठीक है, तो दिस प्रूव्स योर फर्स्ट पार्ट. ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है. आगे देखो क्या लिखा है कि इफ AB इज इक्वल टू BC. ध्यान से देखो, कहता है अगर ये साइड AB इज इक्वल टू BC, अगर ये हो तो आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट ECD, मतलब ECD. सिर्फ इतना निकालना है. ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ. ये एंगल तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ चुका है ना. एंगल BCD आपके पास आ चुका है बेटा. एंगल BCD आपके पास आ चुका है 80 डिग्री. अब देखो, आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है तो कैन यू से दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये वाइस वर्सा भी होता है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल हो जाती है, अगर साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है, इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल देन यू कैन से दैट ऑपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल. तो यही वाला रिजल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी. क्या लिखूंगी बेटा? आई होप यू हैव नोटेड डाउन. कहाँ पे? ठीक है, मैं आगे कर देती हूँ थोड़ा सा. ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखना. सिंस AB इज इक्वल टू BC, अगर AB BC के इक्वल है
ए बी बी सी के इक्वल है, तो ये एंगल 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, राइट, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर ये 30 है, बी ए सी 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल बी सी ए भी 30 डिग्री होगा। अब देखो आपको क्या निकालना था, ई सी डी, आपको निकालना है ई सी डी। बेटा ध्यान से देखना, ये देखो आपके पास बी सी डी, एंगल बी सी डी क्या है, एंगल बी सी डी इज द सम ऑफ बी सी ए प्लस डी सी ए, बी सी ए प्लस डी सी ए। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो बेटा, मैंने कहा मुझे सिर्फ ये एंगल निकालना है, एंगल कौन सा निकालना है, ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी ये निकालना है। ठीक है, ये वाला ई सी डी बोल दो या ए सी डी बोल दो, एक ही बात है। ई सी डी और ए सी डी एक ही बात है, एंगल यही आएगा। मैंने सोचा मेरे पास ये 30 था, ये भी 30 आ गया। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल के कॉन्सेप्ट से इक्वल आ गया। मेरे पास ये पूरा एंगल था, मुझे सिर्फ इतना निकालना है। तो बी सी डी कितना था बेटा, बी सी डी था 80 डिग्री और बी सी ए कितना आया, देखो बी सी ए ये मेरे पास 30 डिग्री आया था ऊपर से। तो एंगल डी सी ए 80 में से 30 गए, 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। एंड डी सी ए, देखो ध्यान से देखो, डी सी ए इज नथिंग बट डी सी ई। So this implies that angle DCE is 50 डिग्री। DCE कितने का आ गया, 50 डिग्री का आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं था, एक बार से समराइज कर लेती हूँ, ध्यान से सुनना। आपके पास ये एंगल था, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल से आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट किया। जब आपके पास ये एंगल आ गया तो इस वाले ट्राइंगल में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से आपके पास ये एंगल आ गया, एंगल बी सी डी, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट के लिए आपको एक कंडीशन दी हुई है कि ए बी बी सी के इक्वल है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये ट्राइंगल बन रहा है तो आपके पास एक रिजल्ट है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इफ इट इज 30 डिग्री देन इट वुड बी 30 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपको ये वाला एंगल निकालना था। अब ये देखो बेटा, आपके पास ये पूरा एंगल है, बी सी डी है, तो बी सी डी में से अगर ये वाला माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये एंगल आपका क्या है, ए सी डी बी है, और यही एंगल आपका ई सी डी बी है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, now come to question number 8. Question number 8 of the same exercise, that is 10.5. Question number 8 is, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, then prove that it is cyclic. आपको क्या शो करना है? This is the statement. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is cyclic. बेटा बेसिकली ट्रेपीजियम आपको पता है जिसमें जो वन पेयर होता है वो पैरेलल होता है और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ट्रेपीजियम की। इसमें क्या करना है, आपको साइक्लिक शो करना है। ट्रेपीजियम इज काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ना, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब कब मैं कहूँगी कि कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, साइक्लिक के लिए कंडीशन होती है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर मैं 180 डिग्री प्रूफ कर दूं तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसे हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ एक कंडीशन प्रूफ करनी है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में ये प्रूफ कर दूं कि ए बी सी डी में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो एक साइक्लिक बन जाएगा। ठीक है, सो हाउ विल सबसे पहले मैं ट्रेपीजियम बनाऊंगी। ठीक है, वेट बेटा, हाँ एक ट्रेपीजियम बना रही हूँ। दिस इज द ट्रेपीजियम, आप इसको सर्कल के अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, दिस इज ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। यू कैन सी ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी एंड बी सी, दीज आर द नॉन पैरेलल साइड्स।
These are the non-parallel sides. And what is given in this question? In this question it is given that non-parallel sides of a trapezium are equal. इसका मतलब AD BC के equal है. बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के. यहाँ पे है कि AD आपका BC के इक्वल है. दिस इज गिवन. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, साइक्लिक शो करना है. साइक्लिक के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी. कंस्ट्रक्ट AM perpendicular on DC and BN perpendicular on NC, right? ठीक है बेटा. तो these are the non-parallel sides. AD BC के इक्वल है. ये मैंने कंस्ट्रक्शन करा, तो आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD perpendicular, this is AM perpendicular on BC and BN perpendicular on again DC. ये दोनों के दोनों DC पर perpendicular है. अच्छा, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ. अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि व्हाट इज द नीड टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. क्या जरूरत थी इनको प्रूफ करने की, अभी मैं बताऊंगी. देखो, कंसीडर ट्राइंगल्स ADM and triangle BNC. ठीक है. Call this angle 1, this will be angle 2. Angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree. By construction, construction से आपके पास आया है. AD is equal to BC, as it is given in the question that non-parallel sides of the trapezium are equal. So this is given in the question. One more thing, AM is equal to BN. इसका रीजन है, एक मिनट बेटा. perpendicular distance from two parallel lines. क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई थी, तो जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब जो आपने परपेंडिकुलर डाला था वो भी इक्वल होगा. सो बाय यूजिंग these three conditions can you say that triangle ADM is congruent to triangle BNC by RHS congruency? And you know that when two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So you can say that this angle D is equal to angle C. Angle D is equal to angle C by CPCT. एंगल D और C क्या हो गए, CPCT से इक्वल हो गए. अब ध्यान से एक चीज और देखना बेटा, एक मिनट. अब देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूँ. एंगल D और C बाय CPCT से इक्वल हो गए. ठीक है. अब देखो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. सिंस DC is parallel to AB and AD is the transversal, AD ट्रांसवर्सल है, तो आप कह सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री. Co-interior angles on the same side of transversal forms 180 डिग्री. तो आप क्या लिखोगे, co-interior angles on the same side of transversal. मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो ये लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल D और एंगल A का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. और देखो यहाँ से एंगल D C के बराबर है, एंगल D सेम है C. आपको क्या शो करना था, सप्लीमेंट्री शो करना है, साइक्लिक शो करना है ना. साइक्लिक के लिए ऑपोजिट एंगल्स का सम आपको क्या दिखाना है, 180 डिग्री. तो मैंने क्या किया, D को एज इट इज रखा. ठीक है, D को एज इट इज रखा एंड D के अगेंस्ट क्या कर दिया. अच्छा हाँ, D C के इक्वल है, तो I have written A as it is and in place of D I have written C. So this forms 180 degree. रीजन लिख देना, because angle D is equal to angle C. ठीक है. अब देखो A और C इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री. So this implies that AB
हो गया ABCD एक साइक्लिक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैम ने मतलब मैंने यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया है। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ ये अच्छे से। आपने क्या करना है, एक ABCD ट्रेपीजियम बनाओगे। ABCD ट्रेपीजियम बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन करोगे कि AM और जो BN है वो CD पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के बाद ये गिवन कंडीशन है कि जो AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है, ये गिवन है। मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए क्या किया कि AM इज इक्वल टू BM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, angle 1 is equal to angle 2 each 90 degree and AD is equal to BC as it is given in the question that these two are the non-parallel sides and these two are equal. So from these three facts we can say that this triangle is congruent to this triangle by using RHS congruency. उसके बाद आपको क्या आ गया, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यू नो वेरी वेल व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो गया। जब एंगल डी और सी इक्वल हो गया, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लाइन है, मैंने यही वाली लाइन इसलिए ली क्योंकि मुझे सी के कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों का सम 180 डिग्री शो करना था। मैंने सोचा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो कोइंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म्स 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से मैंने डी को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ सी, क्योंकि मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया था कि इस एंगल सी डी के इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 8. Up to 8 I have discussed with you. So the same question you have to do in homework also. Rest we will do in my next video session. So have a good luck beta and do all the question.